Hello. Hello. Class, good morning. Am I audible? Class, am I audible? Yes, sir. So let me start the today's session. Right? In the previous lecture, yesterday we have discussed the unit 2 and the topic was electric field. Clear? And then we have discussed the Coulomb's law. Clear? Now, in today's lecture, here we are going to discuss the next topic, that is electric field intensity. Yeah, electric field intensity. Okay. So let me start with the discussion. Our next topic is electric field intensity. Okay. So what is this? पहले तो हम लोग define कर देते हैं इसको, ठीक है? So आप लोग note कर लीजिए, the region surrounding an electric charge, the region surrounding an electric charge or a group of charges in which another charge experiences a force is called as electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? द रीजन सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज और ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है, इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स हियर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जो फील्ड डेवलप हो रहा है चार्ज की वजह से, उसके सराउंडिंग में चार्ज जो एग्जर्ट कर रहे हैं इस फोर्स को या फील्ड को, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात अगर हम करें तो क्या होगा? We talk about electric field intensity. So the intensity of electric field, the intensity of electric field at a point in the field, is defined as the force experienced by a unit positive charge okay, placed at that point. नोट कर लिया सभी ने इसको?
बताइए बेटा। क्लास, हेलो क्लास, एम आई ऑडिबल? लिख रहे सर। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। वैसे मैंने कल के नोट्स सब शेयर कर दिए थे, आप लोग को मिल गया होगा along with the video on the गूगल क्लासरूम। आप लोग वीडियोस देखा करिए, ठीक है ना, रेगुलर वे में। क्लासेस के जितने भी लिंक है मैं सब शेयर कर दे रहा हूँ, और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब लिंक को, इससे आपको जो भी अपडेट्स हैं मिलते रहेंगे उसमें, ठीक है। सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी भी जाती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? So the intensity of electric field at a point in the field is defined as the force experienced by a positive charge placed at that point. Clear? So अगर हम डायग्राम की बात करें, so let have a diagram of this. एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और जो ये फील्ड हमारा डेवलप हो रहा है इसके क्रॉस, something like this. ठीक है, so the direction भी बना दीजिए इसमें exerted field की, the direction of this here, and this is your plus, जो टेस्ट चार्ज है इसको हम लोग प्लस क्यू चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। एंड सपोज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, सपोज एक हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पे प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, दिस इज योर स्मॉल आर डिस्टेंस, क्लियर, फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो आपका चार्ज प्लेस है वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज योर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। So it will exert a you can say electric field intensity here. So this will exert a, you can see so we can find the electric field due to the charge plus q at this point, that is the unit positive charge, यहाँ पे at a distance r we can find it, okay. So here you can see, you can write it here, this is electric field due to charge q, ठीक है, clear. So now now if we write the expression of this, so let F be the force, F be the force experienced by a test charge by a test charge Q naught placed at a point in the electric field ठीक है, comma, then the intensity of electric field E at that point is given by
that is E is equal to F by Q naught. Clear? This is the electric field intensity. Are you getting? इसकी यूनिट अगर हम लिखेंगे, talk about unit of this, so Newton per Coulomb. ठीक है? So Newton per Coulomb. Are you getting? कुछ समझ में आ रहा है? बताइए. यस सर. ठीक है, तो एक मान लीजिए टेस्ट चार्ज है जो कि हमारा एक डिस्टेंस r पे लोकेटेड है, यहाँ पे इस पॉइंट से, दैट इज सपोज आई हैव टेकन एट q नॉट. क्लियर? सो यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन डिस्टेंस पे है. तो व्हाट फोर्स इट विल एक्सर्टेड अपॉन इट, दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? so that will be represented by E, that will be equal to the force divided by that test charge, that is Q naught. Clear? ठीक है? So now इसके आगे बढ़े बेटा, इसको नोट कर लिया है, आगे बढ़े, हम शेयर भी कर देंगे आप लोग को. आगे बढ़ो बेटा. नेक्स्ट. हेलो. Yes, sir. ठीक है. सो नाउ ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये सभी को पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. तो डायरेक्शन होती है इसमें, तो डायरेक्शन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. क्लियर? इन विच द पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द फील्ड टेंड्स टू मूव. क्लियर? क्लियर है? सो वी कैन से इट्स डायरेक्शन will be same as the direction of force. As the direction of force. Clear? It means the direction in which the positive charge placed in the field tends to move. ठीक है? क्लियर? यूनिट हमने आपको बता ही दिया. अगर मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें, एज वी आर टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, so let us consider that a unit positive charge is placed at a distance r, ठीक है, from a point ठीक है, from a point charge q in air ठीक है. So from Coulomb's law, the force on unit positive charge is given by the force on unit positive charge
is given by f is equal to, बताया भी था आपको कल कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं इसलिए k विल बी 1 इनटू q1 q2 होता है ना, तो एक तो q हो गया, जैसे हम डिस्टेंस देख रहे हैं सेकंड पॉजिटिव चार्ज की, एक पॉजिटिव चार्ज q है, उससे r डिस्टेंस में हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है ना। तो q1 तो एक q हो गया, q2 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो दैट इज r स्क्वायर, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? हेलो सर इसका यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे सर? लिखिए, बिल्कुल यूनिट वेक्टर, और क्या यूनिट वेक्टर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, जैसे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम यूनिट वेक्टर को जनरली डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन सिंपली इज इक्वल टू, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे चूंकि ये लगा दिया है डायरेक्शन, तो वी विल रिप्रेजेंट इट, क्लियर, सो वी विल रिप्रेजेंट दैट यूनिट वेक्टर, मान लीजिए यूनिट वेक्टर हमारा AR कैप है, ठीक है, अभी हम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी बता देंगे आपको नीचे, इसी के जस्ट नीचे बता देंगे, ठीक है। अभी आप इसको चाहे तो आप यहाँ से बाहर हटा दीजिए, ये वेक्टर डायरेक्शन हटा दीजिए, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो E विल बी व्हाट, अभी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी बताएंगे हम नीचे, F/Q होता है E की वैल्यू, और Q हमने यूनिट टेस्ट चार्ज लिया है तो Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो F/1 हो जाएगा, F आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इनटू Q/R स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे 1 है, दिस इज योर E इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड या स्केलर के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन स्केलर फॉर्म। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं, इफ यू रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म सो डायरेक्शन विल बी देयर, जैसा कि आपने भी बोला है, ठीक है, सो देयर विल बी सम सर्टेन डायरेक्शन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। सो हम आते हैं इसी में, सो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें इसको, that was in a scalar form, they write you in vector form. So how you can represent it in vector form, बताइए, हम डायग्राम बना दे रहे हैं पहले, ठीक है, this is your Z direction, this is your Y direction and this is your X direction, okay, this is your center point, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, पहले चार्ज हमारा ये है, your charge, this is located at r1 distance from here, this is your r1, ठीक है, इसकी वैल्यू प्लस क्यू, ठीक, इसके बाद देयर इज अ पॉइंट P at this place, ठीक, so what will be this distance, suppose this point P is at r distance, okay, और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारा यहाँ पे प्लेस है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, एट पॉइंट P पे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, डायरेक्शन आपको पता है इस P पॉइंट से आउटवर्ड होगी, मतलब कहने का यहाँ पे होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर की, ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है, ये R1 है, ये R है, तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, बताइए, व्हाट विल बी दिस वैल्यू बिटवीन प्लस Q एंड P, हेलो हेलो क्लास, आवाज आ रही है? यस सर। देन व्हाट विल बी दिस वैल्यू, वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक वेक्टर ये है, एक रिजल्टेंट वेक्टर ये है, ठीक है, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, सपोज हमें मान लीजिए अभी ये नहीं पता है, तो ऐसे समझिए, नीचे मैं बताने की कोशिश करता तो हूँ, आप QP की वैल्यू पूछ रहे हैं?
हाँ ये Q प्लस Q से P के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? देखिए वेक्टर ये है, दिस इज सर R1, r minus r1 वेक्टर. ये वेक्टर R है, तो व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी दिस, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर r minus r1. R माइनस R1, वेरी गुड। कैसे निकाला हम लोगों ने? देखिए हमने सर अगर एडिशन, इसका वेक्टर एडिशन करते हैं देखिए हाँ वेक्टर एडिशन 0. करते तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस आता। आर यू गेटिंग? यस सर. तो जैसे मान लीजिए इसको मैं R डैश ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये R डैश है, ये हमें निकालना है। R1 प्लस R डैश इज इक्वल टू R आता है, ये रिजल्टेंट है, दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है। तो हमने R डैश के मतलब कहने का मतलब R1 प्लस R डैश इज इक्वल टू R आता है। इसका मतलब अगर हमें R डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू R माइनस R1। आर यू गेटिंग? इसका मतलब ये अगर हमारा R डैश है, दिस इज योर R डैश, so this will be R minus R1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है, ये हमारा R माइनस R1 हो गया एंड दिस इज योर डायरेक्शन। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट हम पहले लिख लेते हैं, तो डायग्राम हमने बना लिया है। सो कंसीडर, आप लोग भी लिख लीजिएगा लिखना चाहें तो, अदरवाइज इसको मैं शेयर करूंगा, उससे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। कंसीडर ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है क्योंकि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, कंसीडर ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system in which a charge Q is located at distance a distance R1, R1 डिस्टेंस पे तो लोकेटेड है चार्ज Q, ये देखिए, दिस इज फ्रॉम सेंटर दैट इज R1, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एज शोन इन फिगर। डायग्राम आप लोग को बनाना होगा, ये ध्यान रखिएगा, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, नंबर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। सो लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, so let us find the electric field intensity at point P, which is at a distance R, which is at the distance R from the origin, which is at a distance R from the origin, ठीक है। So we will find the electric field intensity at this point P, ठीक है, which is at a distance small r from the origin, due to this plus Q charge, which is located at R1 distance from the origin here। So how you can find, और P और Q के बीच में हमने डिस्टेंस निकाल लिया है, that is R minus R1 है, ठीक है, हमें यही लेना है। So you can see the electric field intensity at point P is given by, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q, Q1 Q2 by R स्क्वायर होता है, सभी को पता है। जो दूसरा हमने क्या ले रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखिए एक तो Q हो गया, तो P पॉइंट पे जो चार्ज है वो क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो इसलिए Q into 1 हो जाएगा, ठीक है ना। Q1 Q2 होगा ना, तो Q1 की वैल्यू तो Q हो गई, Q2 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच,
r माइनस r1 है, तो r माइनस r1 को स्क्वायर इनटू एक यूनिट वेक्टर आएगा जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। दिस इज योर यूनिट वेक्टर, क्लियर? दिस इज योर यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है ये? हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है। वेयर आर इज द यूनिट वेक्टर, इसकी अभी हमने बताया था, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स r माइनस r1, क्लियर? So AR will be what? Now AR की वैल्यू क्या होगी, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड वैल्यू। तो वेक्टर वैल्यू क्या हो जाएगी, r माइनस r1। AR वेक्टर इसी लाइन पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पे जो हमारी डिस्टेंस वेक्टर है दैट इज r माइनस r1 अपॉन दिस मॉड वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज अगेन r माइनस r1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वैल्यू आप यहाँ उठा के, ये वैल्यू आप यहाँ उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, चूंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो वेक्टर जरूर लगाइएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा r माइनस r1, नीचे आ जाएगा r माइनस r1 का होल क्यूब। ये आएगा, बताइए। तो इसकी नंबरिंग कर लीजिएगा, 3 4 जो भी है। ये समझ में आ रहा है सभी को? आगे भैया। समझ में आ रहा है ये? हेलो मैडम ना, माइक कोई किसी ने माइक अनम्यूट Yes, किया sir. होगा, माइक म्यूट कर दीजिए, किसी का माइक अनम्यूट है, somebody has unmuted their mic। जब मैं बोलूंगा तभी आप लोग अनम्यूट करिए, अदरवाइज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपका हो गया, ये एक जनरल फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। Due to a unit positive charge at point P from the that is placed at a distance r minus r1 from the plus q charge, okay. So now the electric field intensity E due to a system of charges, मान लीजिए हमारे पास कई सारे चार्जेस, due to a system of charges, अभी तो हमने एक चार्ज के लिए निकाला है, मान लीजिए हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे निकालेंगे? Can anybody explain how can we find the for system of charges? कोई बताएगा? जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बना के बताते हैं, वही डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर जेड, दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स, क्लियर? सो मान लीजिए व्हाट आई एम सेइंग, ये हमारे पास जैसे एक हमने ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह मान लीजिए हमारे पास हम ई पी पॉइंट की जो डिस्टेंस निकालेंगे, हमारे पास मान लीजिए कई सारे चार्जेस, ठीक है। कई सारे चार्जेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्लस Q1 है, दिस इज प्लस Q1, ऐसे एक हमारा चार्ज यहाँ पे भी है, ठीक है, दैट इज प्लस Q2, ठीक। एक हमारे पास यहाँ पे है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, दिस इज प्लस Q3 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे कहाँ तक प्लस Qn। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है। इन सब की जो डिस्टेंस हम देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, एट पॉइंट P, मान लीजिए P पॉइंट हमारा यहाँ पे, दिस इज योर P पॉइंट, P पॉइंट से डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, बोलिए।
हेलो, मान लीजिए एक चार्ट ये, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही यहाँ से, ठीक है ना। ये सारे आपके सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट हो आपको इस तरीके से कनेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? हेलो, ये डिस्टेंस आपकी हो गई स्मॉल आर, ठीक है। ये डिस्टेंस जो होगी, जैसे मान लीजिए ये हमारा r1 डिस्टेंस पे है, ये हमारा r2 डिस्टेंस पे है, ये हमारा r3 डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा ये हमारा मान लीजिए rn डिस्टेंस पे है। किस डिस्टेंस पे? ये rn डिस्टेंस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे और भी आएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है इस पॉइंट P पे अगर हम r1 r2 r3 rn की वजह से जो कि टेस्ट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q1 तक कैरी कर रहे हैं, इस P पॉइंट पे अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा? अभी जैसे हमने निकाला था, ये डिस्टेंस क्या आएगी? r माइनस r1। सेकेंड वाली डिस्टेंस क्या आएगी? ये वाली r माइनस r2। थर्ड डिस्टेंस क्या आ जाएगी? r माइनस r3 एंड सो ऑन। तो ये वाली डिस्टेंस r माइनस rn आ जाएगी, आएगी एट पॉइंट P। हेलो, ये समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, 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 समझ में आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है? हेलो, am I audible or not? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। बीच बीच में बोल दिया करिए, आप लोग बोलते नहीं हैं, गायब हो जाती हैं क्लास छोड़ के। तो Q1 are located at a distance r1, r2, r3 and rn, ठीक है, जो कि अभी हमने बताया, ठीक है। r1, r2, r3 and rn, ठीक है। सो respectively, ठीक, from a point P, now so the electric field intensity E the electric field intensity E due to point P, sorry, E at point P due to Q1, Q2, Q3, so on to Q1 is क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught। मैं इसको कॉमन ही ले लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा? पहले की वजह से r माइनस r1 अपॉन मॉड ऑफ r माइनस r1 का होल क्यूब प्लस सेकेंड की वजह से r माइनस r2 अपॉन r माइनस r2 का होल क्यूब प्लस थर्ड की वजह से, सॉरी,
थर्ड की वजह से आ जाएगा r माइनस r3 अपॉन r माइनस r3 का होल क्यूब एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? r माइनस rn अपॉन r माइनस rn का होल क्यूब। ये आपका रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, Q कॉमन नहीं होगा क्योंकि Q1, Q2, Q3 ये चार्ज जो हमारे हैं ये वेरी कर रहे हैं। ये जो हमने Q कॉमन लिख दिया है, Q कॉमन नहीं होगा क्योंकि अब हमारा चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn है। ये गलती से Q लिख दिया, ये Q नहीं रहेगा, ठीक है ना? समझ डाल लेते हैं। वो तब होगा जब हम एक ही चार्ज से लेंगे ना। तो हमारे पास Q1, Q2, Q3 सारे अलग अलग चार्ज है ना। यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ Q2 आएगा, ठीक है, यहाँ Q3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? Qn आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ 1/4πε0 ये क्या होता है? समझ में आ रहा है ये? हेलो, आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो Q1 r माइनस r1 बाई r माइनस r1 का होल क्यूब। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, एट पॉइंट P से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे सब डिस्टेंस अलग अलग होंगे, r माइनस r1, r माइनस r2, r माइनस, और अगर हम इस P पॉइंट पे इन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंबाइंड फॉर्म में निकालते हैं, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक सिंगल अगर उसमें लिखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? समेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना पड़ेगा समेशन फॉर्म में? Yes, बताइए। sir. तो समेशन फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट इन समेशन फॉर्म? कैन एनीबॉडी विल टेल? Sir, E equals to 1/4πε0 summation I equals to 1 से लेके n Qn r minus rn upon r minus rn का होल क्यूब। गुड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E is equal to, डायरेक्शन लगा दीजिए टू गेट द फॉर्म, समेशन I is equal to 1 to n Qi मीन्स Q1, Q2, Q3 सब ऐड होकर चला जाएगा, ठीक है ना। समेशन है R माइनस Ri, ठीक है, अपॉन 4 पाई ε0 इंटू R माइनस Ri का होल क्यूब। ये समझ में आ गया सभी को? ये समझ में आ रहा है? समेशन ओपन करेंगे सब ऐड होते चले जाएंगे। आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो Q1 R माइनस R1 अपॉन 4 पाई ε0 R माइनस R1 का होल क्यूब, फिर प्लस होगा, फिर आई की वैल्यू 2 रखेंगे एंड सो ऑन, और n तक ले जाएंगे जितने भी होंगे आपके चार्जेस। क्लियर? समझ में आ गया सभी को ये? हेलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस फार्मूले जो भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कूलम्स लॉ का, फोर्स का, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं। कलर में न्यूमेरिकल